اسمع درس माशाल्लाह ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत से कुरान करीम से करते हैं। तो for the holy verses of Holy Quran, I would like to call Mr. Syed Hamid on the stage to recite the Holy Quran. Please. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह। अब मैं स्टेज पे अली रज़ा साहिब को बुलाना चाहूँगी, जो खुद लिखते हैं, वो स्टेज पे आए और चंद अल्फाज हमारे प्यारे नबी की शान में कहें। अली रज़ा। چند اشعار ہمارے نبی پاک کے شان میں. جان محمد میری دل محمد میرا، جان محمد میری دل محمد میرا، ہر مصیبت کا ہے حل محمد میرا. نور کی ابتدا خلد کی انتہا،
نور کی ابتدا خلد کی انتہا، نیک اگر کام کر پل محمد میرا، تاج وحدانیت اشک جامع ولا، تاج وحدانیت اشک جامع ولا، پہلے اسراح کی چال محمد میرا۔ ہم اسیر خطا کو رہا کر دیا، ہم اسیر خطا کو رہا کر دیا، آج کی دیپت کی کل محمد میرا، سانس میں گونجتی ہر پہر ہر گھڑی، سانس میں گونجتی ہر پہر ہر گھڑی، میرے لفظوں کا ہے پل محمد میرا، میری آنکھوں کو روشن کرو اے خدا، میری آنکھوں کو روشن کرو اے خدا، میری بینائی کا نور محمد میرا۔ حشر میں سر بلند میں رہوں اس طرح، حشر میں سر بلند میں رہوں اس طرح، دو قدم میرے ساتھ چل محمد میرا، میرے مالک سے آپ کرنا حرف زباں، میری مالک سے آپ کرنا حرف زباں، جب میں تنہا کھڑا مل محمد میرا، جا محمد میری دل محمد میرا، ہر مصیبت کا حل محمد میرا۔ درود سے نوازے۔ ماشاءاللہ۔ سو بیسیکلی ہمارا جو پرپس ہے کہ ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو آج کے معاشرے میں جو سب سے بڑی بیماری چل رہی ہے ڈپریشن، اس کے بارے میں بات کریں۔ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کو بہت ہی ویلیو ہی نہیں دیتے، ڈپریشن کو کوئی بیماری ہی نہیں سمجھتے، جبکہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ آج کے دور میں ہر تیسرا انسان ڈپریشن کا شکار ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹ لائف چاہے اسکول لائف، کالج لائف، یونیورسٹی اینڈ وٹ ایور، کسی کو اسٹڈی کی ٹینشن ہے تو کسی کو جاب کی، کسی کو پرسنل ریلیشن شپ کی تو کسی کو فیوچر کی۔ سو ہر کوئی یہاں پہ کسی نہ کسی پرابلم میں ہے۔ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ آپ کس دور سے گزر رہے ہیں، اینڈ یو ریئلی ڈونٹ نو کہ میں کس دور سے گزر رہی ہوں۔ سو اوور آل آئی تھاٹ کہ ہمارے یوتھ کے لیے یہ بہت ایک مہم اور امپورٹنٹ سیشن ہوگا، تو آئی ریکویسٹڈ سر ٹو کم اوور ہیئر اینڈ یہ جو اوور آل آرگنائز ہوا ہے یہ ینگ ایکٹیوسٹ کی طرف سے ہے۔ ینگ ایکٹیوسٹ ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی ہے، اینڈ اٹس بیسیکلی بائی دا یوتھس فار دا یوتھس۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم the very prominent guest of the today. First of all, Sir Haji Behnam. He is President Balochistan Psychologists Association, and he is also Chapter Action Consultant. So overall, I don't think so that inke bare mein kuch kaha ja sakta because he is already the best. And next special guest हमारे यहाँ है Mr. Salam Khan, जो Executive Director है Salam Foundation के, and Professor Mohammad Javed. He is lecturer in history in UOB, Balochistan. He has done PhD. So I would like you all to welcome them once, please. So इससे आगे कि मैं कुछ कहूँ, I think मेरे पास वो knowledge है ही नहीं, तो I would like to call Sir Behnam here to come on stage and share his views. Thank you. مائک سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ویسے وداؤٹ مائک بات کرنے کی، اگر میری آواز آخر تک پہنچ رہی ہے تو میرے خیال میں مائک اور کریٹ کرے گی ہمارے مسئلے مسائل اور ہمیں اسٹریس میں ڈالے گی۔ اگر کہ میری آواز سب کو آ رہی ہے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ مائک کو چھوڑ کے وداؤٹ مائک اگر بات کی جائے تو آپ لوگوں کو کیسے لگے گا؟ صحیح آواز آ رہی ہے تو آپ کو آپ کی جو ریکارڈنگ کے حوالے سے اس میں بھی صحیح تھینک یو۔ اس میں جو ہے
जावेद साहब और सलाम साहब की भी कुछ चीज़ हैं, उनकी बात करवाऊंगा। सर उन पे डिपेंड करेगा, वो बात करना चाहिए। सलाम साहब तक के लिए कि नहीं? उसमें मैं चाहूँगा कि ये मेरे दोस्त दोनों अच्छे दोस्त भी हैं और एक्सपर्टीज़ हैं, मैं ताकि जो स्पेसिफिक जो प्रॉपर जो आज का जो सेशन है जो साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से वो मैं आप लोगों से डिलीवर करूँ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो दो एक्सपर्टीज़ हैं कुछ सिर्फ 2-3 मिनट्स जो वो खासकर जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, नफसियाती मसले मसाइल हैं जो आजकल हमें पेश आ रहे हैं, उस हवाले से वो दोनों एक्सपर्ट्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा कि वो क्या समझते हैं। खासकर जो डिप्रेशन लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ और उसके साथ साथ टेंशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, तो वो उस हवाले से मैं पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनके मुताबिक वो क्या समझते हैं, ये प्रॉब्लम क्या है और कितना अहम रखता है और है क्या चीज़। सबसे पहले तो मैं जो सलाम खान आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेज पर आए तो अब ऑडियंस को बताए ताकि जो मैं फिर आगे स्टार्ट हो जाऊँ। जिन्होंने मना किया दोनों की बुला रहे तारुफ करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक सोशल एक्टिविस्ट है और डेवलपमेंटल सेक्टर का एक एक्सपर्ट है और उन्होंने जो है काफ़ी अरसे से सोशल सेक्टर में जो समाजी काम है इनका बहुत ज़्यादा काम है, खासकर एजुकेशन में ज़्यादा इसका एक्सपर्टीज़ है और इसके साथ साथ खुद काम करते करते उन्होंने खुद अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सालार फाउंडेशन के नाम से जो इस्टेब्लिश किया है और वो आजकल उस ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन मैंने उनकी लिखी, तो मजीद आप जो आज का सब्जेक्ट इस पर अगर रोशनी डालेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर है। थैंक यू बेराम, शाहिदा और ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शुक्रिया। आज इतवार के दिन यहाँ आने का मकसद ये था कि हमारे पास जो 2 दिन छुट्टी के होते हैं उसमें आप जाके फ्रेश होते हैं और यही हमने सोचा कि आप नौजवान से जाके मिलेंगे तो शायद इससे कुछ फ़ायदा हमें भी हो। ज़ाहिर है आप इन दिनों को बड़े ख़ास तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, इनको प्लान करते हैं कि हम ये 2 दिन कैसे गुजारें। जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको लीड कर रहे हैं यहाँ के जो जवान दोस्त मेरे साथ फेसबुक पे भी हैं, शायद हमारे साथ होती हैं तमाम इवेंट्स में भी हमारे सारा फाउंडेशन के बोर्ड का हिस्सा भी हैं। हम चाह रहे होते हैं कि यंग हमारे साथ हो, यूथ हमारे साथ हो, तो हम तमाम मामला को लेकर चल सकें। तमाम हालात हम पे गुजर चुके हैं, अब तक आप जिस स्टेज से आप गुजर रहे हैं, इसलिए हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसी स्पेस क्रिएट करें कि जहाँ पे नौजवानों को एक अच्छे मौके मिल सकें। सेशन इसलिए अच्छा लगा कि हम जानते नहीं थे कि स्ट्रेस क्या है, डिप्रेशन क्या है, कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। ना कोई काउंसलिंग होती थी हमारी, ना कोई कैरियर काउंसलिंग होती थी, ना कोई जीने वाले से, जो कुछ हमें पता चलता हम ऐसे चले जाते। बहुत सारे इश्यूज हमारे साथ भी आए, स्कूल लेवल पे भी आया, मैट्रिक पे गए तो कुछ पता ही नहीं चला कि हमने करना क्या है। आपको जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई आज के हवाले से बहुत अहम है। इससे पहले जिस और दोस्तों को भी उन्होंने इनवाइट किया होगा, जाहिर है आप लोगों के लिए बहुत। मैं यहाँ पे आता रहा हूँ, यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स का विजिट करता और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करता था। अच्छी बात है आपकी इस कम्युनिटी की कि यहाँ पे स्पेस है, लोग अच्छे काम के लिए खुद को पेश करते हैं, चाहे वो इतवार हो, चाहे वो हफ्ता हो, चाहे वो क्राइसिस हो। आप लोगों की भूख का भी ख्याल रखते हैं, आप उनके कपड़ों का भी ख्याल रखते हैं, आप सर्दी गर्मी में भी उनके लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं और यूथ उसमें आगे होती है। सबसे अहम बात ये है, ये जो अभी जाके हमें पता चला जब इन एक्सपर्ट्स के साथ बैठे और कि डिप्रेशन क्या है, स्ट्रेस क्या है, तो हमें पता चला कि जब हमें मुश्किल होती थी और कोई बताने वाला नहीं था, तो ये तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ का शायद भी जिक्र कर रही थी कि डिप्रेशन और स्ट्रेस कितनी बीमारियों की वजूहत हैं इसका हमें पता ही नहीं है। हमारे यहाँ सुसाइड होते हैं, हमारे यहाँ लोगों के रिलेशंस खत्म हो जाते हैं, लोगों के साथ इतनी मसाइल आ जाते हैं कि वो नशे और मुख्तलिफ चीज़ों में। जिन लोगों के साथ हम बैठे हुए ये कह रहे हैं कि दुनिया में लोगों के साथ बिलखुसूस जो आप लोगों की एज है, इसमें ही आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो मैं हफ्ता इतवार को हुसैन साहब लूडो खेलता हूँ। हमारे लूडो में ऐसा है कि हार जीत नहीं है, जीत वही है कि लास्ट तक किसी ने तोड़ नहीं किया और दाना वहाँ पे। और मैं जब मुश्किल होती मैं घर नहीं छोड़ता, मैं घर पे रहना वहीं पे टिका रहता है जब तक
सारे आखिर तक पहुंच नहीं जाते। और ये एक चीज़ मुझे सपोर्ट करती है कि और मैं आखिर में इसी को ही समझता हूँ, लोग कहते हैं यार खत्म कर दो, अब क्या बचा है तुम्हारे 3 दानों तक पहुंच गए वहाँ पे, अब क्या नहीं। मैंने कहा मुझे ये बताया गया है पेरेंट्स की तरफ से कि आपने स्ट्रांग रहना है, आखिर तक रहना है, और जब आपकी जीत यकीनी होगी फिर भी आप इंजॉय करें, लेकिन जब आप हार रहे होंगे फिर भी खुद को बहुत स्ट्रांग रखें। और ये चीज़ मेरी गुर्बत में, मेरी मुश्किलात में, मेरे मैट्रिक में पहुंचा तो मुझे बताया गया कि फीस नहीं है, स्कूल छोड़ दो। तो उसके बाद मजदूरी और एजुकेशन साथ चलते रहे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन, अच्छे हालात, अच्छी सिचुएशन ये है कि हम दूसरे के बच्चों और नौजवानों के साथ ही काम कर रहे हैं। तो वो जो घर पे आप रहते हैं एक दाने के साथ, तो वही आपको जीत तक पहुंचाती है। इसलिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं समझाऊँ, आपके दोस्त, आपके कुलीग्स, आप उनके साथ शेयरिंग करें, बात करें, ये मसला मैं समझ चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। आपके साथ ये एक्सपीरियंस में चाह रहा था, क्योंकि मैं बात तो नहीं करना चाह रहा था, बैराम ने मजबूर किया। थैंक यू वेरी मच। स्टे स्ट्रॉन्ग। जो भी सूरत होगी, जो भी सिचुएशन होगी, हार जीत होता है, सब जीत नहीं सकते, हार जीत होती है जिंदगी में। तो इस सोच के साथ जिए, आगे बढ़ें कि जीतेंगे तब भी इंजॉय करेंगे, हारेंगे तब भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साइकोलॉजिकल लाइफ के लिए फैमिली का जो जिक्र किया वो बहुत इम्पोर्टेंट एक हिस्सा होता है। और फैमिली आपकी अगर के सही हो और एक सही रास्ते पर चल रही हो और एजुकेटेड हो और उसके साथ साथ चीज़ों का उन्हें पता हो, तो आप भी सही तरह से उस हवाले से आगे भी बढ़ सकते हो और कामयाबी का आप रास्ता देख सकते हो। अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे डॉक्टर जावेद साहब यहाँ पर मौजूद है, उसकी भी ख्यालात का मैं फ़ायदा उठाऊँगा इस वक्त का, ताकि जो है उन्होंने जो वक्त लगाया है वो कुछ, जैसे सलाम खान ने अपने एक्सपीरियंस से, तजुर्बात से, कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं आप उस स्टेज पर पहुँचे हो, उस स्टेज को हम क्रॉस करके गुजरे हैं और उसको प्रैक्टिकली तौर पर हमने देखा है, और जो बातें हम आपके साथ करेंगे एक प्रैक्टिकली तौर पर हमारे ऊपर गुजरे हैं, वो बातें हम आपके साथ रख रहे हैं। हम बुकिश चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं ला रहे हैं, क्योंकि किताबों में चीज़ें अलग होती हैं और जो आप प्रैक्टिकली तौर पर जाओगे तो वो चीज़ें अलग होती हैं। तो ये मिस शाहिदा और उसकी तंजीम का एक बहुत बड़ा आप लोगों के ऊपर समझो एक एहसान है कि उन्होंने जो इस किस्म का एक प्रोग्राम किया, और इस प्रोग्राम से आप लोग जो है आज भरपूर फ़ायदा लेके चले। मज़ीद मैं चाहूँगा कि जावेद साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो स्टेज पर आए, अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा जावेद सरफड़ है, मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ। मैडम शाहिदा ने कहा कि पीएचडी, काश मैं पीएचडी होता, मेरा पीएचडी भी कंटिन्यूड है। और साइकोलॉजिकली अगर बात किया जाए, मेरा ख्याल जिस तरह मैंने ड्यूरिंग कोरोना, क्योंकि ड्यूरिंग कोरोना मैं चाइना में था जब ये पहला जब स्टार्ट हुआ कोरोना, तो मुझे पता है कि यानी साइकोलॉजिकली, यानी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हैंडमेड, यानी आप रिकवर किस तरीके से करते हैं, और आप उस एक आइसोलेशन में रह के आप अपना स्टडीज की तरफ किस तरह जाते हैं, आपका जो डेली रूटीन आया वो चीज़ें उससे डिस्टर्ब होते हैं या नहीं होते हैं, ये सारे ये कनेक्टेड है, आपकी नफ्सियात से ही रिलेटेड है। आजकल तो ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में काफ़ी जगहों पे ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं कि यानी कोरोना के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स और स्टूडेंट्स लाइफ, कि आया उनका डेली जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है। मैं तो समझ रहा था कि शायद हम एट द एंड आएंगे और हम कुछ जो हमारे एक्सपर्टीज हैं उन पे बात करेंगे, लेकिन anyhow it is grateful we came for talking here। तो नेक्स्ट ये है कि यानी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, यानी आप उस सोसाइटी में आप किस तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस कोरोना के दौरान, यानी क्योंकि आजकल अगर कोरोना से आप पहले देख ले तो लोग इसको जो है डिप्रेशन को इस तरह वो समझते नहीं थे, क्योंकि आप अभी इसको प्रैक्टिकली फेस कर रहे हैं। प्रैक्टिकली फेस इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अगर आप पहला फेज देख ले इसका, जो पाकिस्तान में पहला फेज, यानी स्पेशली अगर मैं बलूचिस्तान का बात करूँ, फर्स्ट यानी हुआ था
یعنی مارچ میں آپ پریویس مارچ کو دیکھ لیں اور اس مارچ کو دیکھ لیں, اگر کوئی آپ کے سامنے کانستا بھی تھا تو آپ اپنے آپ کو اس سے کیا کرتے تھے, دور لے جاتے تھے, اور مینٹلی آپ اس طرح ڈسٹرب ہو جاتے تھے کہ آیا کوئی کانس رہا ہے تو آپ سمجھتے تھے بس اس کو کورونا ہے. تو اس کا جو پہلا فیز تھا وہ مینٹلی اسٹوڈنٹس کو, عام جو سٹیزنز تھے ان کو بہت افیکٹ کیا تھا. لیکن ابھی جب دوسرا فیز, شاید تیسرا فیز اس سے خطرناک ہے, لیکن اس خطرناک ہونے کے باوجود جو آپ مینٹلی کیا ہو کہ آپ مینٹلی اسٹرانگ ہو, آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی طرف جا رہے ہیں, آپ اپنا اسٹڈیز کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنا 2020 دیکھ لیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ 2020 was the one of the worst years we have ever faced. وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ کوئی کام کر نہیں پا رہے تھے, نہ آپ اسٹڈی کو آپ کا دل چاہ رہا تھا, آپ بیٹھتے تھے بس گھر میں جو فیملی ممبرز تھے وہی تھے, اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس نہیں تھا. آپ کسی دوست کے پاس جاتے نہیں تھے, آپ اوائڈ کرتے تھے, ایسا نہیں پتہ نہیں وہ کیا سمجھے گا, کیونکہ حکومت کی بھی طرف سے, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسٹرکشنز تھے, 5 بندوں کی سے زیادہ کہیں پہ گیدرنگ نہیں ہوگا, آپ کے جتنے بھی یعنی پکنک اسپاٹس تھے وہ بھی بند ہو گئے, جتنے بھی آپ کے ایکسپوجرز یعنی باہر ہوتے تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے. تو وہ سائیکولوجیکل امپیکٹ تھا وہ ہو رہا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے, تقریباً 2 مہینے پہلے ایم اے کے ایگزامز چل رہے تھے, تو میں نے ایک کال ریسیو کیا اسلام آباد سے, تو کوئی فیمیل تھے, انہوں نے کہا کہ میرا ایک ریسرچ چل رہا ہے, ایم فل کے ایک ریسرچ ہے, اس میں نے کچھ کویسچنز ہیں وہ میں پوچھتا ہوں کہ جو ایم فل کے اسکالرز ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں ان پہ کورونا کا کیا سائیکولوجیکل امپیکٹ پڑا ہے. ابھی اس میں کیا امپیکٹ پڑا ہے, تو اس کے کچھ اس نے کویسچنیئرز بنائے ہوئے تھے, اور وہ کویسچنز وہ کیا کر رہے تھے, وہ شیئر کر رہے تھے. تو ابھی اس میں ان آلات کو مد نظر رکھتے ہوئے, یعنی کل ایک پروگرام تھا فیوچرز میں, کین ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی طرف سے, وہ ایک ڈیبیٹ کنٹیسٹ تھا انگلش اور اردو کا, تو وہاں پہ بھی ایز اے گیسٹ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ یعنی اسٹوڈنٹس جتنے بھی تھے وہ آ رہے تھے, وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. یعنی اس سے پہلے کچھ ایسے بھی ہمارے پروگرامز تھے, آن لائن کوئی پروگرامز پہ نہیں آ رہا تھا. یعنی کچھ پروگرامز مجھے یاد ہے کہ یعنی لاسٹ ایئر 2020 میں فرسٹ پروگرام تھا بہرام صاحب والوں کا, میں نے بوائز اسکاؤٹ میں اٹینڈ کیا, یعنی ڈیورنگ کورونا. اس سے پہلے یعنی ہم جاتے ہیں مختلف ایز اے کیریئر کاؤنسلر, ایز اے موٹیویشنل اسپیکر, اور مختلف یعنی ٹریننگز وغیرہ کرواتے ہیں, لیکن 2020 میں یہ چیزیں ہوئی نہیں. تو وہ ایک ڈپریشن تھا. وہ ڈپریشن کو آپ کس طرح فیس کرتے ہو, آپ اس سے کس طرح کم آؤٹ ہوتے ہیں, یہ آپ کی جو ہے سب سے پازیٹیو چیز یہی ہے, یعنی آپ کسی مصیبت سے کس طرح اپنے آپ کو نکالتے ہو. اگر اس ٹائم پیریڈ میں دیکھ لو, سب جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ان کو پروموٹ کیا گیا, 9th والے تھے وہ 10th میں چلے گئے, 8th والے تھے وہ 9th میں چلے گئے. اسی طرح جو سیمسٹرز تھے وہ اسکیوزڈ ہو گئے, یعنی پرسائز ان کو کر کے 2 مہینے 3 مہینے کا انہوں نے ایک سیشن ابھی کر رہے ہیں, کیونکہ مینٹلی ابھی اسٹوڈنٹس اس طرف ابھی جا رہے ہیں. تو وہ ڈپریشن یا جو آپ اسٹریس کی بات کر لیں یا نروس بریک ڈاؤن کی آپ بات کر لیں, وہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں ہیں, وہ جب تک آپ اس جگہ پہ ابھی جائیں گے نہیں, آپ اس چیز کو فیس نہیں کریں گے, وہ اس ٹائم تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے. میرا ایک دوست تھا, اس نے بولا کہ ایکسیڈنٹ کیا, کیونکہ گاڑی تھا وہ کسی کھائی میں گر گیا, تو وہ اس میں تھوڑا گاڑی تو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا, لیکن اس کا اتنا اس کو نقصان نہیں ہوا, ایک ہاتھ اس کا تھوڑا فریکچر ہوا. تو اس کے بعد میں نے کہا یار یہ ابھی گاڑی بھیج دو, تو گاڑی آپ کا خراب ہو چکا ہے. اس نے کہا نہیں, میں اس گاڑی کو بناؤں گا, اس گاڑی میں 5 بار اسی رستے سے جاؤں گا, بولا کہ رستے سے جاؤں گا تاکہ میرے ذہن میں جو فیئر ہے, جو ایک خوف ہے کہ کل کے دن میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئے گاڑی میں جاؤں تو وہ جگہ دیکھ کے جو ہے میں مینٹلی وہاں پہ ڈسٹرب ہو جاؤں, تو ایسا نہیں کہ میں دوبارہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ کر لوں. تو اس نے وہی گاڑی بنا کے 5 بار اسی رستے سے آیا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ گاڑی بیچ کے پھر دوسرا گاڑی اس نے خرید لیا. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. یعنی جب تک آپ فیس نہیں کرو گے اٹ از امپاسبل. یعنی بعض اوقات اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ پی سی ایس کے ایگزام دے رہے ہیں یا سی ایس ایس کے ایگزام دے رہے ہیں یا کسی لیکچرشپ کے ایگزام دے رہے ہیں, تو ان ایگزامز میں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کسی پیپر میں اٹیمپٹ کرنے کے لیے جاتے نہیں ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اگر میں فیل ہو جاؤں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, تو وہ ابھی وہ ایک ڈپریشن کا وہ ایک شکار ہے. وہ کہہ رہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بھی میرے ساتھ بلوچستان پبلک سروس کمیشن میں سی ایس ایس کا پیپر پی سی ایس کا پیپر دے رہے ہیں یا کسی اور, تو وہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ اس کو اتنا ڈپریسڈ وہ ہو جاتا ہے فیلئر کی وجہ سے, وہ اٹیمپٹ کرنے نہیں جاتے ہیں. شاید وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے کافی بہتر ہے,
बाकी जिनको वो गाइड कर रहे हैं उनसे भी बेहतर, लेकिन क्या है कि मेंटली वो फिट नहीं है। जब आप मेंटली फिट नहीं है तो मेंटली फिट होने के लिए यानी आपको जो है रिलैक्स्ड होना, एक एनवायरनमेंट में, अगर मैं समझता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग हजारा टाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। लास्ट टाइम यहाँ पे एक बुक एग्जीबिशन हुआ था तो मैंने कोशिश की कि उसमें आ जाऊँ, लेकिन एक दो हमारे प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में थे उसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तो कल जब इन्विटेशन मिला मैंने कहा नहीं, आज जिस तरह भी वो जाना है ताकि मैं एक जगह पे जाऊं, उस कल्चर को देखूं, उस एनवायरनमेंट को देखूं, ताकि जो वो बार बार मैं उस प्रोग्राम में क्या कर सकूं, मैं उसको अटेंड कर सकूं। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, यानी के साथ दूसरे के साथ कल्चर एक्सचेंज, एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करना, पॉजिटिविटी लाना। ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर इस सेशन में से 5-6 स्टूडेंट्स अगर साइकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, अभी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि half of the students are male and participants male and half female। जब बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मास्टर्स एनुअल होता था तो मुझे याद है वहां से 50 स्टूडेंट्स थे, जब हम एग्जाम ले रहे थे उनमें से एक लड़का था, बाकी 49 फीमेल्स वो क्या थे, वो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आया कि आया दीज साइको केसेस आर ओनली रिलेटेड विद द फीमेल्स या मेल्स के साथ भी है। तो वो मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया उसको। अभी जाके हमारे अभी भी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स जा रहे हैं साइकोलॉजी की तरफ जिनको बाकी डिपार्टमेंट्स में एडमिशन नहीं मिलता है, वो जा रहे हैं। लेकिन मैंने इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट्स में एचटीसी में बहुत से ट्रेनिंग किए, वहां पे जितने भी हमारे ट्रेनर्स आए हैं साइकोलॉजी के, मोस्ट ऑफ देम वर फीमेल। अभी ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बहराम से हम पूछेंगे कि ये रेशो क्यों इस तरह है, कि आया ये केसेस का मसला है या इंटरेस्ट का है। क्योंकि आप देख ले कॉलेजेस साइड पे एक मेरा दोस्त है, उसका यानी वो लेक्चरर है साइकोलॉजी का, कॉलेजेस साइड पे मुझे पता नहीं कि बॉयज कॉलेजेस में कहाँ पे आया ये डिपार्टमेंट क्यों इतना प्रोडक्टिव है नहीं। अगर बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त डिपार्टमेंट हमारा है, और उसके अलावा भी मेरे ख्याल शायद ब्यूटन यूनिवर्सिटी में भी है, तो मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन फिर भी एसबीके में भी है साइकोलॉजिकल ये साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स इसकी तरफ जा नहीं रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि अभी बहराम साहब अभी अपना सेशन जब कंडक्ट करवाएंगे डिप्रेशन के ऊपर या आप मैनेज किस तरह करते हो उसको, तो शायद आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे कि यानी हमारे जो 3 यूनिवर्सिटीज कोयटा में जो मेन यूनिवर्सिटीज आप में उनमें किसी की तरफ जाएंगे, तो वो आप अपना यानी जो एक फ्यूचर है वो आप खुद सिलेक्ट करते हैं। यानी जहां पे आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उस पे जाएं, आपको बजाय किसी और जगह पे वो ले जा रहे हैं और आपका वहां पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट के बजाय आप क्या होते हो कि आप टेंशन में होते हो। अभी भाई ने किसी डिपार्टमेंट में एडमिशन करवाया तो बस टेंशन है, बस भाई ने करवाया अभी कोशिश करूंगा, अभी भाई भी परेशान, ऐसा नहीं कि ये फेल हो जाए फिर मैं इसको क्या करूं। तो वो ये है कि स्टूडेंट का अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आप उसको कैरियर काउंसलिंग उसको कर लें, आप उसको गाइड कर लें, आप उसके ऑप्शंस पूछ लें। तो ये साइकोलॉजी एक बहुत ही जबरदस्त सा सब्जेक्ट है, लेकिन लोग इसकी तरफ जाएं। आपको मेंटली अगर आप फिट हो गए, फिजिकली फिट हो गए, मेरा ख्याल फिर सिचुएशन को तो फेस फिर आप कर ही सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहराम साहब भी बोर ना हो जाए, वो कहें कि सब्जेक्ट मेरा है आप बोल रहे हो उस पे, तो आते हैं बहराम साहब की। हाँ बताओ, उसके बाद इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम्स होते जाएंगे, कैरियर काउंसलिंग पे बाकी कोई इस तरह का प्रोग्राम होंगे तो उस पे आके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू एंटायर टीम ऑफ यंग एक्टिविस्ट। एक इंटरेक्शन हुआ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जावेद साहब, सलाम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रॉपर तौर पर जो अभी आज का जो सेशन है, आप दोनों एक्सपीरियंस जो मेरे दोस्त हैं उनसे आप लोगों की इजाज़त से और अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से मैं इसको इब्तिदा करता हूँ। और सबसे पहले जो इखलाकन जो रस्मन रिवाजन जो बातें होती हैं उसी से इब्तिदा करेंगे, जैसे कि शुक्रिया अदा करेंगे हम मिस शाहिदा बतूल साहिबा का और उसकी टीम का, और उसके साथ साथ यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पर आए, लड़कियाँ ख़वातीन हज़रात हम नहीं कह सकते, लड़कियाँ जितनी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतवार का दिन निकाल के यहाँ पर आए हो। और मैं चाहूँगा कि आप जो है फिज़िकली तौर पर यहाँ पर तो मौजूद हो,
मैं चाहूँगा कि आप लोग मेंटली तौर पर भी यहाँ पर मौजूद रहें। मैंने ये दो लोग जो यहाँ पर स्पीच कर रहे थे, मैंने सब पूरे हाल के सब बंदों को मैंने देखा, उसमें से मुझे जो है 10% लोग जो नज़र आए, ये भी अच्छी तादाद है कि 10% लोग जो है वो यहाँ पर फिजिकली तौर पर प्रेजेंट नहीं है, और जो है वो मेंटली तौर पर तो फिजिकली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेंटली तौर पर वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मेरे तरफ ही मुतवज्जा हो, और मैं ज़्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूँगा। और हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो भी हम सेशन करते हैं, जो भी बात करना होता है, वो 40 मिनट से ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो ना आपको समझ आ जाएगी, ना आप उसको ले सकते हो, ना आप जो उसको आगे बढ़ा सकते हो, ना उसे सीख सकते हो। इसीलिए मैंने जो है 20 मिनट अपने दोस्तों को दिया है और 40 मिनट मैंने अपने लिए रखा है। तो मैं कोशिश करूँगा इस 40 मिनट में एक तो आप लोगों से जो मैंने प्रैक्टिकली तौर पर देखा है उसको जो है हम इसको बंद करते हैं, प्रैक्टिकल आवाज़ पे लिए कि नहीं सुनाई देगी। मैं चाहूँगा कि प्रैक्टिकली तौर पर भी आप लोग यहाँ पर मेरे साथ रहें। उससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं चाहूँगा कि एक साइकोलॉजिकल एक क्या है टेक्निक है, वो मैं आप लोगों से अडॉप्ट करना चाहूँगा, ताकि आप जो है आपकी जो सेंसेस है इस टाइम, क्योंकि हमारे हाथ में हमारा साइकी, हमारे हाथ में हमारे फीलिंग्स, हमारे हाथ में हमारे इमोशंस, हमारे हाथ में हमारे सेंटिमेंट्स, ये हमारे हाथ में नहीं होते हैं। ये जो है किसी न किसी वजह से कंट्रोल होते हैं, किसी न किसी वजह से मुतासिर हो रहे होते हैं। तो उस वजह से मैं चाहूँगा कि हम साइकोलॉजी में जो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि आप जब तक यहाँ पर रिलैक्स होके नहीं बैठोगे, जब तक आप यहाँ पर रिलैक्स होके मुझे नहीं सुनोगे, आप मुझे नहीं लगता है कि आप आगे चीज़ों को ले जा सकोगे और आप आगे चीज़ों को समझ सकोगे। उसमें हम साइकोलॉजी में डीप ब्रीथिंग का एक एक्सरसाइज करते हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप इसको मैं प्रैक्टिकली तौर पर आप लोगों से मैं डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज, गहरे उर्दू में कहते हैं कि गहरे सांस लेना, उसका मैं एक्सरसाइज आप लोगों से मैं करवाऊंगा, ताकि जो है जितने भी लोग अगर फिजिकली तौर पर यहाँ पर नहीं तो मेंटली तौर पर बाहर है, तो शायद वो यहाँ पर आए। तो मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे तरफ मुतवज्जा हो और आप सोचें इस टाइम आप एक जगह में हो, आप एक जगह ऐसे कमरे में हो जहाँ पर जो है सामने एक फ़र्द आपकी खड़ा है जो ब्लैक ड्रेस में है और वास्किट पहना हुआ है, और उसके जो लेफ़्ट साइड पर उसकी आप मेरे तरफ आप देखिए मुतवज्जा हो, और लेफ़्ट साइड पर उसकी जो पॉकेट में ग्लास लगा हुआ है, ग्लासेस हैं, गॉगल्स हैं। ये आपको जो है शो स्टाइल लगाने के लिए नहीं है, ये जो है। और इसके साथ साथ आप देखें कि मेरे लेफ्ट हैंड पर वॉच बंधा हुआ है, इसको तवज्जो देखें। और इसके साथ साथ आप जो है गहरे, मैं आप पहले प्रैक्टिस में आप करवाऊंगा, आप भी इसी तरह से गहरे गहरे सांस लें। सबसे पहले ये कि सांस आप अपने नाक से जो है लोगे, आप अंदर ले जाकर 5 सेकंड के लिए गिनोगे, 1 2 3 4 5 आप अंदर रोकोगे, फिर उसके बाद जो है उसको आप बाहर निकालोगे। ये प्रैक्टिस आप 3-4 बार करोगे मेरे साथ मिलकर, तो आप रिलैक्स भी फील करोगे और उसके साथ साथ जो फिजिकली तौर पर भी यहाँ पर रहोगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि इसको प्रैक्टिस करूँ, आपके सामने एक डेमो करूँ, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप लोग करें ये इस तरह से गहरे गहरे सांस बाहर का। आप देखिए कि बाहर की आप कोशिश करें कि जो ठंडी हवाएं हैं, खुशबूदार हवाएं हैं, और बाहर का जो पॉजिटिव एयर है उसको लेने की कोशिश करें इस तरह से। इस तरह से आप, और ये सोचे कि आप अंदर जो आप अपना जो हवा ले रहे हो, एक पॉजिटिविटी और एक अच्छी हवा को ले रहे, और इसी तरह से जो आपके अंदर एक जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज है, उस सांस के साथ वो निकल रहे हैं। इसी तरह से एक दफ़ा फिर आप मेरी तरफ देखिए, आपके लिए ये आपको थोड़ा फनी लगेगा कि ठीक है ये ऐसे लगता है बंदे को। तो उसमें ये कि पहले आप जो है कोशिश करें कि बाहर से जो जितना पॉजिटिविटी, जितना एक पॉजिटिव हवा है, एयर है, उसको कोशिश करें आप नाक के ज़रिए से आप ले, और महसूस करें कि वो आपके अंदर आपके फेफड़ों में जा रही है।
अभी आप लोगों के बारे में अभी आप लोगों का बारी है, मैंने 2 बार की है, अभी आप लोगों ने। जी जिन्होंने मास्क पहना हो, ये जिन्होंने मास्क पहना है, मास्क अपने नीचे करें स्टेप। जी आप प्रैक्टिस करें, आप सांस ले एक दफा, इस तरफ से भी नहीं हो रहा, सांस पे कोशिश करें कि जो बाहर की जो एक पॉजिटिव और एक फ्रेश एयर है वो अपने अंदर ले, और उसके साथ 5 सेकंड के लिए आप अंदर इसको रोकें और उसके बाद जो है आप इसको देखें। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ये एक आप इस पर बिलीव करें, आप इस पर जो है साइकोलॉजिकली तौर पर इस एक्सरसाइज को दिन में अगर 3 या 4 दफ़ा आप लोग करें तो बहुत सारे आपके नफ्सियाती मसले मसाइल हैं उससे जो है आप निकल सकते हो, क्योंकि ये आपके अंदर जो आपके हार्मोन्स हैं, आपके जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, आपके डिप्रेशन के हार्मोन्स हैं, आपके टेंशन के जो हार्मोन्स होते हैं, वो बहुत सारे मसले मसाइल, बहुत सारे इश्यूज की वजह से वो रुक जाते हैं। आप जब डीप ब्रीथिंग करोगे तो वो उस तरह से एक्टिवेट होते हैं और आपके जो पॉजिटिव स्ट्रेस के जो हार्मोन है वो आ रहे होते हैं और इसकी तरह आपकी बॉडी में आके जाके आपको सही तरह से नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। यही चीज़ जो है आप किसी अगर डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे तो वो आपको इन चीज़ों के लिए एंटी डिप्रेशन और एंटी स्ट्रेस और एंटी एंग्जाइटी के जो मेडिसिन हैं वो आपको देते हैं। उनका क्या काम होता है कि जो आपके माइंड में और बॉडी में जो नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं, जो ब्लॉक हो गए होते हैं किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी मसले की वजह से, किसी इशू की वजह से, उनको जो वो एक्टिवेट कर रहा होता है और उसके बाद जो है आपके बॉडी में जो स्ट्रेस के पॉजिटिव जो हार्मोन्स चल रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, उसके बाद जो है आप आगे सही एक्टिव काम कर रहे होते हैं। तो उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अभी यहाँ पर डिस्कशंस हुई थी कि डिप्रेशन के हवाले से, और मिस शाहिदा ने भी कहा था कि डिप्रेशन के हम लोग शिकार हैं, और जावेद साहब ने और इसके साथ साथ सलाम साहब ने कहा कि हम लोग जो जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं सब डिप्रेशन के शिकार हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगा कि ये डिप्रेशन क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि डिप्रेशन क्या है, ताकि मैं जानूँ कि मैं अगर बोल रहा हूँ और इस ज़ीरो से स्टार्ट करूँ या जो है मैं यहाँ से जो मुझे आगे स्टार्ट करना होगा। खड़े होकर जिसने भी अगर इस पर बात करना है, खड़े होकर उसमें अब तक मुझे पता चले कि कौन बात कर रहे हैं। जी, डिप्रेशन हमने बात की यहाँ पर कि आप कह रहे थे डिप्रेशन, ये बात तो हो रही थी कि हम डिप्रेशन का शिकार है सब, तो आप मुझे बता सकते हैं कि डिप्रेशन है क्या चीज़ आपके मुताबिक? जी चलो। मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस, जावेद साहब ने कहा कि जो जहनी तौर पर हम लोग जो है डिस्टर्ब होते हैं, मुतासिर होते हैं, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। कोई और मुझे बता सकता है डिप्रेशन? जी मिस। हमारे पास फीलिंग्स जो हम शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, वो हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, हम उनको फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो हम मेंटली हम डिस्टर्ब होते रहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं आपने कहा, वो जो चले जाते हैं वो है क्या चीज़? नहीं, वो क्या होता है कि आप अपने नहीं जो चले जाते हो आप अपने घर में ना, वो तो बर्डन है कि उस बर्डन की वजह से, उस प्रेशर की वजह से, उस मसले मसाइल की वजह से आप उधर चले जाते हो डिप्रेशन के पास। डिप्रेशन क्या कोई फिजिकल कोई चीज़ है, या कोई टेलीविज़न है, या जो है कोई जानवर है, या जो है कोई दोस्त है जो उसके पास आप चले जाते हो? हमारी फीलिंग्स होती हैं सर, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, हम उससे तो टेंशन। जी, और कोई बता सकता है कि डिप्रेशन, जैसे हमने बात की कि डिप्रेशन हम इसकी जो बात कर रहे हैं, हम सब जितने भी इसके सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, मुझे जो है नाराज़गी होती है, मुझे जो है खौफ हो रहा है। जी सलाम खान। मेरे ख्याल में शायद ऐसा ही हो कि किसी भी ख़ास सिचुएशन, माहौल या हालात की वजह से जब आप नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं, वो शायद डिप्रेशन।
جی وہ کہہ رہے کہ کسی بھی خاص وجہ کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے جو نا امیدی کی جو ہمیں ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہم نا امید ہوتے ہیں, نا امید ہونے کے بعد پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. جی آگے کچھ کس نے کہا بس جی. اگر ہم بات کریں تو اکثر یہ ہوتا ہے نا, جو بندے احساس کمتری میں ہوتے ہیں وہ اکثر ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. لائک اوور تھنکنگ کہ میں کر نہیں پاتی, میں لوگوں سے مطلب لوگوں سے بات نہیں کر پاتی. اٹ از کائنڈ آف سمتھنگ کہ اس کو اپنے آپ میں ہی کمی محسوس ہونے لگتی ہے, لائک آئی ایم ڈفرینٹ فرام ادرس. تو وہ ایک طرح سے مینٹل النیس کی طرف جاتے ہیں جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ پوائنٹ کلیئر ہو گیا. کوئی اس میں اور بات کر سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ یہاں پر آپ سامنے آئے گا کہ ایک مینٹل النیس ہے, ایک دماغی بیماری ہے ڈپریشن, یہ اس تک پہنچ گئے. ہم نے کچھ اس کے جو وجوہات جانے کہ نا امیدی ہے, جیسے سلام نے کہا کہ نا امیدی کی وجہ سے, کسی نے کہا کہ خوف کی وجہ سے, کسی نے کہا کہ دوستوں کی کسی بات کی وجہ سے, کسی نے کہا کہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ایک خاص نفسیاتی جو بیماری ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. اب ہم اس طرف پہنچ گئے. اور کوئی اس پر روشنی ڈال سکتا ہے کہ ڈپریشن ہے کیا چیز؟ سر ہمارے پاس ہوتا ہے سیڈنس, ٹینشن اور ڈپریشن, یعنی ہم غم میں بھی ہوتے ہیں, پریشانی میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جو ڈپریشن کا ایک لیول آ جاتا ہے کہ کوئی غم میں ہوتا ہے تو کوئی چیز مینیپولیشن ماحول کا ہوتا ہے تو کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے, لیکن ایک بندہ جب ڈپریشن کے لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کچھ انسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈپریس لوگ ہیں جو سوسائڈ کرتے ہیں یا کوئی اور اٹیمپٹ کرتے ہیں, وہ ان کی زندگی سوشل میڈیا پہ یا پھر ان پرسن بہت خوشگوار دکھتے ہیں ہمیں, لیکن وہ مینٹلی بالکل ہیلتھی نہیں ہوتا. جی بالکل. وہ جو اسپیشلی خاص کر جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا ہے. دماغی طور پر وہ جو ہے فزیکلی طور پر آپ کو صحیح لگتا ہے, آپ کو بصورت اور خاص کر جو پریکٹیکلی طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں وہ چل پھر رہا ہوتا ہے, گھوم رہا ہوتا ہے, لیکن جو ہے اندرونی طور پر اس کے ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں مسئلے مسائل ہو رہے تھے جس کے ساتھ وہ لڑ رہا ہوتا ہے. اور آخر میں جو ہے اس لڑائی کے ساتھ انہوں نے آخر اس کا درجہ کہا کہ وہ خودکشی پر مائل ہو کے اور جو اپنے جان کا سودا کر دیتا ہے اور اس جہاں سے چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ اس چیزوں تک, اس بات تک پہنچے ہیں کہ ڈپریشن, لیکن ابھی بھی ہم جو ڈپریشن کی بات کر رہے ہیں ایز اے ہول, ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن, ایز اے جو سوسائٹی, ایز اے معاشرہ, ہم لوگ جو ڈپریشن کو لے کے چلتے ہیں, جو ورڈ ڈپریشن کا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہے, اس کو ابھی بھی تھوڑا بہت ہم نے پروو کرنا ہے, ابھی بھی تھوڑا بہت آپ کے سامنے اس کو لانا ہے, ابھی بھی تھوڑا بہت آپ کو بتانا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت ڈفریشیٹ ہم نے کرنا ہے کہ ہم آیا ہم دیکھیں کہ ہم لوگ ڈپریشن کا شکار ہے یا کوئی اور سائیکولوجیکل مسئلے کا ہے. جیسے ابھی یہاں پر ہم نے سامنے سیڈنس کا کہا گیا, اداس, ہم بہت سارے لوگ اداس ہو رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے. ہم نے نیوز میں دیکھا کہ کہیں پر جو ہے کسی بچے کے ساتھ جو ہے زیادتی ہو کے اس کو قتل کیا گیا, تو ہم سینسٹیو ہوتے ہیں, ہیومن بینگ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سیڈنس ہوتی ہے, اداسی ہوتی ہے. آیا یہ ڈپریشن ہے؟ ہم اس کے بعد آگے دیکھیں گے کہ کہیں پر جو ہے ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آفس پہنچنے کے لیے, تو اس میں ہمیں ہر ایک منٹ پر, ہر ایک موومنٹ پر جو ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں صبح اٹھتے بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم 8 بجے کیسے اٹھیں. آج 10 بجے کا سیشن تھا تو آپ سب کو پتا تھا کہ بھئی سنڈے کا دن ہے اور سنڈے کے دن ہم نے جا کے سیشن اٹینڈ کرنا ہے, تو یہ بھی آپ کے لیے بہت سارا مسئلہ تھا اور آپ کے ذہن میں بہت سارے ایشوز تھے کہ ہم کس طرح سے چیزوں کو کریں. وہ بھی آپ کو ایک قسم کی پریشانی آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں ڈال رہی ہوتی. اس کے بعد باہر نکلتے ہوئے ہر ایک لمحے پر, ہر ایک مومنٹ پر آپ کو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچانک آپ کو یاد آ جاتا ہے کہ آج جو ہے 1 بجے جو تھا آپ کے کسی جو فرینڈ کا کوئی برتھ ڈے ہے تو وہ آپ بھول گئے تھے اور آپ کے اس نے اسٹیٹس لگا دیا, اسٹیٹس سے آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کا برتھ ڈے ہے. تو ابھی آپ سیشن پر جا رہے تھے, ایک سمجھو ایک اسٹریس, ایک ڈپریشن یا آپ اس کو ٹینشن ہو آپ کے ذہن میں آ گیا اور یہاں پر آپ کو بیٹھی ہو تو وہ ٹینشن آپ کے ساتھ چلا جا رہا ہے اور آپ جو ہے پریشان ہوتے جا رہے ہیں. تو آیا دیکھیں کہ یہ بھی ڈپریشن ہے,
तो डिप्रेशन को तो हम लोग बहुत वक्त में सोच रहे होते हैं। उससे पहले कि मैं आपको इस चीज़ों पर, इस डिफ्रेंशिएट पर, इस मसले पर बताऊं, तो आज का जो सेशन था, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर है मोहम्मद रसूल साहब, वो कमिटेड था आज के सेशन में, और वो आज आ रहा था शायद थ्रू इसके सोशल मीडिया के घर में बैठे आइसोलेट होकर, शायद क्वारंटाइन होके वो शायद देख रहा होगा। तो वो उन्होंने मेरे तवस्सुस से पैगाम आप पर पहुंचाया है कि मैं उन्हें जो है रिसेंटली चावी के दौरे पर और तफ्तार और दालबंदीन के दौरे पर गए हुए थे। BRC में काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, यंग साइकोलॉजिस्ट है, बहुत डेडिकेटेड है और वॉलंटियर काम कर रहे होते हैं। तो उन्होंने शाहिदा के साथ ही कमिटमेंट की थी कि आज के सेशन के लिए, अनफॉर्चुनेटली जैसे चावी से तो उन्होंने अपना टेस्ट किया तो वो कोविड पॉजिटिव निकला है। तो मैं आप लोगों से उसकी तरफ से माजरत भी कहूँगा कि वो नहीं आ सके, और उसके साथ साथ आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसके लिए दुआ करें ताकि जो है उस जो मूजी मर्ज है इससे जो है मुकाबला करके वापस आए और नेक्स्ट टाइम यहाँ पर वो सेशन करें। मैं आज उनकी ही जगह पर सेशन दे रहा हूँ। इसके साथ साथ जो मैं कुछ चीज़ें बताता आप लोगों को चलूँ, मैं खुद एज ए बलूचिस्तान साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट यहाँ पर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। आप लोगों को आज का जो वक्त मैंने दिया है अपने एसोसिएशन की तरफ से आपके साथ हूँ, और एसोसिएशन हमारी यहाँ पर जावेद साहब ने बहुत सारी कुछ चीज़ों को, सलाम साहब के बहुत सारी चीज़ों के ऐसे पॉइंट्स है, इसको थ्रू आपके जो वॉइस ऑफ हज़ारा के जो पेज है इसके थ्रू से मैं जितनी भी जनरल कमेटी हमें देख रही है, और कुछ यहाँ पर अच्छी तादाद में लोग आए, मैं उस चीज़ को थोड़ा बहुत क्लियर करना चाहूँगा। अभी तक हम जो है साइकोलॉजी को बलूचिस्तान में हमने अभी तक नहीं समझा। जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ फीमेल ही क्यों साइकोलॉजी में होते हैं, फीमेल इसलिए होते हैं कि उनको एक तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये जो सब्जेक्ट है ये इंसान के बारे में होता है, इंसान के ख्यालात के बारे में होता है, इंसान की सोच के बारे में होता है। जब FSC में कोइंसिडेंटली या BSc में कोइंसिडेंटली ये सब्जेक्ट वो लोग जब चूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम जब वो किसी न किसी हादसे से वो सब्जेक्ट आ जाते हैं उसके आप जब वो पढ़ रहे होते हैं, तो फिर उसको फिर पता चलता है कि ये सब्जेक्ट हमारे बारे में है। तो फिर वो कुछ ऐसे हमारी ख़वातीन होती हैं जो बहनी होती हैं, वो फिर इस सब्जेक्ट को लेकर आगे चले जाते हैं और सेंसिटिव होते हैं, और ये सब्जेक्ट उनकी दिल की बात कर रहा होता है, जो दिल की बात को आगे लेके चल रहे होते हैं। कुछ ख़वातीन या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, उनको जो है बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में आपने खुद देखा है कि एक वाइड वो सब्जेक्ट डिपार्टमेंट यहाँ पर लड़के नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स, उनके वालिदैन पहले बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में इसलिए एडमिट कराया जाता था कि दाखिला दिया जाता था कि भाई लड़के नहीं है वहाँ पर, तो इसीलिए चलो इस डिपार्टमेंट में लड़कियाँ कम है, लड़के कम है, तो उसको उसी डिपार्टमेंट में दाखिला लिया जाता है। और इम्पोर्टेंस इसको नहीं दिया गया है। आज तक जो है साइकोलॉजी को बलूचिस्तान में इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है। आज तक जो है डिफरेंशिएट साइकेट्री और साइकोलॉजी के दरमियान में नहीं हुआ है। अभी भी जो एक जिस किसी से इंटेलेक्चुअल बंदे से भी बात करो तो वो एक ही चीज समझता है, साइकेट्री को और साइकोलॉजी को, और जो लोग ज्यादातर प्रमोट साइकेट्री को कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जो है जब तक हम आदी होते हैं कि जब तक हमें कोई मेडिसिन नहीं मिले उस टाइम तक हम लोग किसी चीज का जो है आगे काम नहीं कर पाते। लिहाजा मेडिसिन साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिसिन दे रहे होते हैं। साइकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपको बातों से, आपको मुख्तलिफ थेरापी से, आपको जो है काउंसलिंग से, आपको जो गाइडेंस से, आपको जो डिस्कशन से, आपके साथ एक प्लान करके एक लंबे चलन के साथ आपके साथ जाके आपका जो इशू है उसको हल कर सकते हैं। आप अभी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप डिप्रेशन को लेकर ही जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे डिप्रेशन हुआ है, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपके साथ बात भी नहीं करेगा, आपके साथ कुछ पूछेगा भी नहीं। आप कहेंगे डिप्रेशन कैसे, कहते मुझे ये मसले हैं और मैं डिप्रेशन, तो उस टाइम आपको
उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि आपके साथ बैठ के आपके साथ डिस्कशंस करें, आपके साथ पूछें कि आपका मसला है। आपको 3-4 गोलियां लिख के देते हैं जो कि आपका जो वो थॉट्स आपको आ रहे होते हैं, आपका जो मसला आ रहा होता है उसको वो रोकने की कोशिश करते हैं, और नो डाउट वो उसमें वो कामयाब होते हैं। आप आके घर में बैठते हो, आप रिलैक्स हो रहे होते हो, आपके जो नेगेटिव थॉट्स आपके ज़हन में होते, सोच होते, वो रुक जाते हैं। लेकिन कब तक वो रुकेंगे? और वो जो है मेडिसिन आप एक ले रहे होते हो, एक हफ्ते बाद वो मेडिसिन 2 लेते हो, उसके बाद 3 लेते हो, उसके बाद 4 लेते हो, उसके बाद जो ये असर छोड़ देता है। फिर इसके बाद अगर आप 5 mg का ले रहे हो तो फिर 10 mg का लेते हो, फिर 20 mg का लेते हो, तो इससे अपना डोज उसमें बढ़ाते जा रहे हो। आखिर में क्या होता है कि आप एक हैबिचुअल बन जाते हो। उसमें फिर ये है कि फिर इसके इंजेक्शंस भी आते हैं उन्हीं के चीज़ों के, तो फिर आप इंजेक्शन की तरफ चले जाते हो ताकि जो है आपको उस डोज को, आपका जो वो फीलिंग्स है उसको कंट्रोल किया जाए। साइकेट्रिस्ट नो डाउट उसका एक अहम रोल होता है, उसका एक काम अहम होता है कि इनिशियल स्टेज में आप जो एक मसले से गुजर रहे हो तो उस मसले को कुछ वक्त के लिए जो है वो रोके रखें, ताकि जो है आपको वो फीलिंग्स से आपके अंदर जो हार्मोनल चेंज होते हैं उन हार्मोनल चेंज को जो है वो चेंज करके उसको जो है सही राह पर लगाया जाए। नेक्स्ट फिर जो स्टेज होता है वो साइकोलॉजिस्ट का और साइकोलॉजी का काम होता है, क्योंकि आपको अगर कि कोई डिप्रेशन का आप शिकार हुए, आप जो है किसी भी साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हुए, किस वजह से हुए हो, वजह क्या है इसका, वजह उसका वहीं पर रुका हुआ है, वो वजह वहीं पर अड़ा हुआ है, वो वजह वहीं पर अटका हुआ है। जब तक आप उस वजह को आप उठाओगे नहीं, जब तक आप उस वजह को आप हल नहीं करोगे, आप जब तक उस वजह को आप उसका सही इलाज नहीं करोगे, आप आगे नहीं निकल सकते हो। आप जो है आगे इस मसले का जो है इससे कामयाब नहीं हो सकते हो। तो ये डिफरेंशिएट बिटवीन साइकोलॉजी और साइकोलॉजिस्ट का होता है। और जो हम यहाँ पर जो इस चीज़ को आगे नहीं ला पा रहे हैं, हम जो है बीइंग, अगर हम किसी अगर साइकेट्रिस्ट को ब्लेम करें या किसी डॉक्टर को ब्लेम करें, इसमें उतना ही ब्लेम कसूरवार हमारा भी होता है, क्योंकि हम मेडिसिन का आदी बन चुके हैं। हमें जब तक मेडिसिन नहीं दी जाए उस टाइम तक जो है हम चीज़ों को सही तरह से समझ नहीं पाते हैं। काउंसलिंग को हम इजी लेते हैं। अभी मैंने आपको एज अ होल आपको सिर्फ एक छोटा सा टेक्निक्स मैंने डीप ब्रीथिंग का बताया, तो वो भी आप लोगों को एक मजाक लग रहा था कि भाई इससे क्या फायदा हो सकता है। आप अगर अपने डेली रूटीन में, लाइफ में इन चीज़ों को डालोगे तो वो आपको इन चीज़ों से निकाल सकते हैं, इन चीज़ों से आउट कर सकते हैं, इस मसले मसाइल से आगे आपको बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे कि आज अगर हम लोग यहाँ से निकले, आज हम लोग यहाँ से जाएं, तो हमें थोड़ा इतना पता चले कि साइकोलॉजी और साइकेट्री में फ़र्क है, और जो है हमें कोशिश करना चाहिए कि साइकोलॉजी की तरफ जाएं। पूरे दुनिया में अभी चीज़ों को इस तरह से देखा जा रहा है कि हम कोशिश करें कि मेडिसिन की तरफ नहीं जाएं, हम जो है विदाउट मेडिसिन जो भी ट्रीटमेंट्स है उस तरफ कैसे जाए। अब जो फिजियोथेरापी है, फिजियोथेरापी भी अभी जो आप हमें देखेंगे, अब हमारा जिस्म दर्द कर रहा होता है तो उसके लिए हम लोग जो है ऐसी मेडिसिन जो दर्द की होती है वो स्टेरॉइड किस्म की चीज़ें ले रहे होते हैं। लेकिन फिजियोथेरापिस्ट है, फिजियोथेरापिस्ट के पास जाओगे, आपको 1 हफ्ता लगाएगा, उस चीज़ पर कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ एक्सरसाइजेस कराएगा, तो उसके बाद जो है आपका जो पेन है, आपकी बॉडी में जो मसला था वो जिंदगी पर के लिए वो जा सकता है। इसी तरह से साइकोलॉजी का भी यही चीज़ होता है कि इसको आगे आपने जो भी मसला होता है उसको मसले को आपने जो है आइडेंटिफाई करके आपने किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है। अनफॉर्चुनेटली अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर बलूचिस्तान में नए हमारे जो यूनिवर्सिटी लेवल पर आप देखें, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिम्मेदारी वहाँ डिपार्टमेंट्स की होती है कि आपने इस सब्जेक्ट को किस तरह से आगे ग्रूम करके ले जाना है। फिर इसके बाद हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो हेल्थ के प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूद होता है। उनकी जिम्मेदारियां फिर नेक्स्ट आती हैं कि उन्होंने जो इस सब्जेक्ट को उस तरह से ड्यू रिस्पेक्ट और जो ड्यू इसका जो ज़रूरत है, अहमियत है, नहीं दिया गया है। इसके बाद जो है ऐसे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे सियासतदान हैं, वो अक्सर बात कर रहे होते हैं आपके लिए
डॉक्टर की बात कर रहे होते हैं, आपके लिए जो है हॉस्पिटल की बात कर रहे होते हैं, आपके लिए मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं। आजकल जो है साइकोलॉजी को एक इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है। इसके साथ साथ फिर हमारा भी इसमें कसूर होता है कि हमने जो है इसको सही नहीं समझा, हमने इसको इस तरह से नहीं लिया, हम जो है साइकेट्रिस्ट की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट लेवल इसका वो इस तरह से आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लेम चली जाती है हमारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे आला अथॉरिटीज है उनकी तरफ चली जाती है कि उन्होंने जो है हम फॉरेन कंट्रीज का, डेवलपमेंटल कंट्रीज का हम लोग क्यों कहते हैं कि वो क्यों हमसे तरक्की याफ्ता कर रहे थे। उन्होंने हर एक सब्जेक्ट को उसके मुताबिक डील करके और उसके मुताबिक जो है उसको आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से जो है चीज़ें वहाँ पर तरक्की कर चुकी हैं और चीज़ें आगे जा चुकी हैं। हमारे यहाँ मैं आप लोगों को इसलिए कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, ताकि जो है आप इन चीज़ों को लेके आगे चलें। आपके पास आपके पार्लियामेंटेरियंस भी आते हैं, आपके पास आपके पॉलिटिशियंस भी आते हैं, आपके पास आपके थिंक टैंकर्स भी आते हैं, आपके पास आपके इंटेलेक्चुअल्स भी आते हैं। तो उसमें आप कोशिश करें कि आप इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें, इन चीज़ों के ऊपर भी काम करें, ताकि जो है एक रास्ता बने साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, और खासकर आपके लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, आपके थॉट्स के लिए, आपके जो इश्यूज है साइकोलॉजिकल उनके लिए हल करने के लिए। क्योंकि आप खुद जहाँ जब तक डिमांड उस टाइम क्रिएट हो जाएगी, जब तक जो है आप हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं, जब तक वो नहीं कहेंगे, अब आप कहेंगे कि हमें साइकोलॉजिस्ट चाहिए, हमें जो है साइकोलॉजिकल सेंटर्स चाहिए, हमें जो है काउंसलिंग सेंटर चाहिए, हमें कैरियर काउंसलर्स चाहिए, जब तक आप डिमांड नहीं करोगे उस टाइम तक जो है चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको मैं अभी और एक बात बताता चलूं कि यहाँ पर बलूचिस्तान में 2019 में मेंटल हेल्थ एक्ट, जो मेंटल हेल्थ की जो बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, ज़हनी आपका सेहत, ज़हनी सेहत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक आप साइकोलॉजी को इन्वॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करोगे, आपका मेंटल हेल्थ अधूरा रहेगा। अभी आपको मैंने एक मिसाल दी कि कोई भी आपका साइकोलॉजिकल मसला है, आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको जो मेडिसिन देके आपको कुछ वक्त के लिए वो उस मसले से दूर कराएगा, लेकिन आप जो बुनियादी तौर पर बेसिक आपका जो फंडामेंटल एक बुनियाद है, आप जब तक उसका बुनियाद को नहीं निकालोगे, आप जब तक उसकी बुनियाद को आप लोग आइडेंटिफाई नहीं करोगे, उससे आगा नहीं करोगे, उसका इलाज नहीं करोगे, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। मेंटल हेल्थ एक्ट 2019 वो भी इस तरह से बना है। मैंने कहा कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे थिंक टैंकर्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट को वहाँ पर नज़रअंदाज किए। पूरा एक मेंटल हेल्थ एक्ट बलूचिस्तान का बना है, जिसमें जो है उसमें बात की गई है कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जो काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे, उन काउंसलिंग सेंटर्स को गवर्नमेंट बनाएगी, इसी तरह का आपके हॉस्पिटल से इसी तरह काउंसलिंग सेंटर्स बनाएंगे। वहाँ पर आपके जो साइकोलॉजिकल मसले मसाइल हैं, जो नफ्सियाती मसले मसाइल हैं, उनको जो है कौन डील करेगा, साइकेट्रिस्ट डील करेगा। और आपके इसी तरह से जो भी शोबा आपका आ रहा है, उस सब शोबाजात को जो है साइकेट्रिस्ट डील करेगा। तो साइकेट्रिस्ट क्या करेगा, जो अभी आपके सामने मैंने रखा है कि साइकेट्रिस्ट वक्ती तौर पर होता है, साइकेट्रिस्ट भी इनकम्प्लीट है। साइकेट्रिस्ट जो है अगर 100% जो नफ्सियाती मसले मसाइल है, उन नफ्सियाती मसाइल में से 5% ऐसे मसले मसाइल होते हैं जो साइकेट्रिस्ट उनको डील करता है। 95% ऐसे मसले मसाइल हैं जो साइकोलॉजिस्ट डील करता है, जो काउंसलिंग के थ्रू से डील होते हैं, जो कि बात करने की तरफ से डील होते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने लाना और आपको बताना ये मेरे लिए लाजम है। सर अगर क्वेश्चन आंसर सेशन पहले करें या बाद? नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा उस पर लाकर उसकी क्वेश्चन आंसर करता हूँ। अभी कुछ बातें आपके सामने मैंने कही और कुछ बातें आपके सामने रखी, और जो है डिटेल में आपके साथ इंशाअल्लाह ताला अगर के आप लोगों ने चाहा, आप लोगों की इंटरेस्ट रही, और हम हमारे पास इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे आप लोगों को वक्त निकाल के इसके लिए पूरा टाइम देना पड़ता है, पूरा आपको जो है गाइड करना पड़ता है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग करेंगे। उस वक्त तक मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि हमारे पास अभी 5 मिनट है। 5 मिनट में मैं डिप्रेशन को थोड़ा आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहूँगा कि हम डिप्रेशन की बात कर रहे होते हैं, वो आया डिप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशंस हुई, जो बात हुई
हमने यहाँ पर डिस्कशन आपके सबके डिस्कशन से बातों से ये बात चली कि जैसे हमने कहा कि एक साइकोलॉजिकल इलनेस की बात की, इसी तरह से टेंशन की बात हमारे सामने आ गई, इसी तरह सैडनेस की भी बात आ गई, इसी तरह से खौफ की भी बात आ गई, इसी तरह से जो नाउमीदी की भी बात की। ये सब जो है जितने भी बातें होंगी सब साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसाइल हैं, सब नफ्सियाती जो है बीमारियां हम नहीं कह सकते, ये मसले मसाइल हैं जो आप किसी भी आपके जो लाजिम नहीं कि किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ आप जाके इन मसले मसाइल को डील करना, लेकिन ये लाजिम है कि आपके पास अगर छोटा सा भी मसला है, अगर आपको जो है किसी भी जैसे कि आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या जो आपका कोर्स वर्क पीछे रहा है, या जो है आपका कोई एडमिशन का मसला है, या जो है आपको जो मार्क्स कम मिले हैं जो प्रीवियस टेस्ट में, आगे आप जाना चाहते हो, तो ये ऐसे मसले मसाइल है जिसकी वजह से आपको परेशानी होना लाजिम है। उसके लिए ये लाजिम नहीं है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करो, पूछो कि भाई मैंने किस तरह से चीज़ों को करना। आपने जो है इस मसले को आप किसी अपने करीबी दोस्त के साथ, आप करीबी आप हमनवा के साथ, आप करीबी आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप डिस्कस करना होता है। ये बात लाजिम है कि आप अपने जो भी बातें होती आपने अपने दिल में चीज़ों को नहीं रखना है, वो चीज़ें लाजमी आपने शेयर करना है। और शेयर करने का भी क्राइटेरिया होता है कि आपने हर एक के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करना है। आपने एक ऐसे बंदे को, आपने एक ऐसे फर्द को, आपने एक ऐसे दोस्त को, आपने ऐसे एक साथी को देखना है। और हर कम्युनिटी में, हर मोहल्ले में, हर फैमिली में, हर खानदान में ऐसे फर्द मौजूद होते हैं जो हमने उनको देखना है कि वो कितने रिलायबल होते हैं, क्योंकि जो नफ्सियात, जो साइकोलॉजी होती है उसका 100%, 100% जो इसका जो दारोमदार राजदारी के ऊपर होता है, क्योंकि नफ्सियाती मसला आपके राज के साथ छुपा हुआ होता है। आपको अगर कोई भी अपना मसला किसी के साथ शेयर करना होता है तो आपने देखना है कि जो मैं किसी फर्द के साथ या किसी बहन के साथ या भाई के साथ या फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा हूँ वो कितना रिलायबल है और कितना वो चीज़ों को राज के साथ रख सकता है, तो फिर आप अपना उसके साथ मसला शेयर करें। लेकिन मस्ट होता है, नेसेसरी होता है कि अपना मसला शेयर करें। जब तक आप अपना मसला शेयर नहीं करोगे तो वो आपका जो परेशानी है, वो आपका जो गम है, जो आपका जो दुख है, जिसकी जो आपने बात की छोटी सी चीज़ पर जो है आप जो है अपने होमवर्क को लेकर, आप जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर, आप जो है अपने ग्रेड को लेकर आप परेशान हुए हो, उसको आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी के साथ डिस्कस नहीं किया, आपने अपने दिल पर रखा, तो वो दिल के अंदर रहकर जो है बहुत सारा बायोलॉजिकली तौर पर आपके अंदर तब्दीलियां लाता है, बायोलॉजिकली तौर पर आपकी फिजिक को बहुत मुतासिर करता है, आपको ज़हनी तौर पर आपको बाय फेस आपको चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, टेंजिबल चीज़ें वो नज़र नहीं आती हैं, लेकिन वो अंदरूनी आपको जो खोखला कर रही होती है, जिसके जो है आगे जाकर आपने जो रिसर्च ने अभी साबित किया कि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर के मर्ज क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, जो ज़्यादा देखे कि उसने कहा कि मैंने ज़्यादा तो चीनी नहीं खाया, मैंने ज़्यादा मीठा नहीं खाया, मैं ज़्यादा मिठाई खाता हूँ, मैं ज़्यादा घी इस्तेमाल करता हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, लेकिन फिर भी डायबिटीज का शिकार हुआ। क्या है कि वो साइकोलॉजिकल इश्यूज को जो आपने प्रोलॉन्ग किया और आपने जो डिस्कस नहीं किया उसको नेक्स्ट स्टेज पर आपने उसको लाए हैं। तो ये एक इशू जो परेशानी, छोटी सी एक परेशानी होती, परेशानी को आप अगले दर्जे पर लाते हो तो वो एक सैडनेस की तरफ चला जाता है। फिर उसके बाद उसको मजीद आप उस चीज़ को डील नहीं करोगे, मजीद आपके साथ आप ले जाओगे तो वो आपको जो स्ट्रेस की तरफ ले जाता है, जो दबाव हम उसको नफ्सियात में कहते हैं कि एक दबाव की तरफ आपको ले जाता है, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, जिसकी वजह से आप जो है कभी कभी जो है चीज़ों को भूल रहे होते हो, कभी कभी आप यहाँ पर अगर क्लास में बैठे होते हो आप अचानक जो आपका ख्याल आपका सोच कहीं चला जाता है, वो होता है। इसी तरह से अगर इसको जो है 1 या 2 महीने से ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है आपका जो वो सोच, वो जो परेशानी है जिसकी वजह से आपने किसी से डिस्कस नहीं किया, किसी से आपने शेयर नहीं किया, तो वो जो है नेक्स्ट लेवल से बढ़ते हुए आपका जो है डिप्रेशन में चला जाता है। और डिप्रेशन
ہم ہر کوئی جو یہاں پر بات کر رہے تھے, کوئی بھی اگر دیکھیں کہ 100% ان میں سے 2% 3% جو ہوتے ہیں, اگر وہ بھی دیکھا جائے وہ ڈپریشن کے انیشل اسٹیج میں ہوتے ہیں. ڈپریشن ایک ٹوٹل کمپلیٹلی ایک نفسیاتی بیماری ہے جسے جو ہے ہم ایک کریکٹرائز کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی سائیکالوجسٹ اس ٹائم تک کنفرم نہیں ہو سکتے جو ہمارے پاس سائیکالوجیکل ٹیسٹ نہیں ہوتے, کیونکہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ سائیکالوجی از سائنس, ایک سائنس سبجیکٹ ہے. سائنس اس ٹائم تک بلیو کرتی ہے جب تک آپ اس کا جو ہے ثبوت نہیں دو گے. تو ثبوت ہمارے پاس سائیکالوجیکل بہت سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. آپ ہمارے پاس آپ کسی بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہو تو آپ اپنے سمٹمز, آپ اپنے جو ہے وجوہات, اپنے مسائل اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ ڈپریشن کا مرض ہے, یا شاید جو ہے یہ انزائٹی کا مرض ہے, شاید جو یہ فوبیا کا مرض ہے, شاید جو obsessive compulsive disorder کا ہے, شاید جو یہ سوسائڈ کی طرف جا رہا ہے, شاید جو کسی طرف. لیکن اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے اسکیلز ہوتے ہیں, سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ تھرو پراپر چینل اس ٹیسٹ کو ہم لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم جو رزلٹ آتا ہے, رزلٹ سے پھر ہم پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کا جو لیول اسٹریس کا کس لیول پر ہے, کس ڈگری پر ہے, آیا اس ڈگری سے کراس کر چکا ہے جو ہم اس کو جو ہے ڈپریشن کہہ سکتے ہیں. جب ہمیں کنفرم ہوتا ہے کہ آپ جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, تو ڈپریشن کے شکار مریض یا کلائنٹ وہ ہوتے ہیں جو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتے ہیں, یا وہ اپنے آپ کو 100% آئسولیٹ کرتے ہیں گھر میں, کسی سے نہ ان کا ملن ہوتا ہے, کسی سے نہ وہ ملتے ہیں, کسی سے نہ جلتے ہیں, نہ اپنا سوشل کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ کھانا صحیح طرح سے کھا رہے ہوتے ہیں, نہ جو ان کو نیند صحیح طرح سے ہوتی ہے. وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک جگہ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہر وقت جو ہے ان کو ایک قسم کا پریشانی لاحق ہو رہی ہوتی ہے, اور جو اس کے اندر بایولوجیکلی طور پر ان کے اندر جو ہے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کو جو بدن درد کر رہا ہوتا ہے, اس کو جو ہے تھکن زیادہ محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اس کو جو ہے ایک اس کا بھوک ختم ہو جاتا ہے, بہت سارے وقت پر بھوک زیادہ بھی لگ رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ بھوک کھانا کھا رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو بہت کم ہم میں سے نظر آتے ہیں کہ جو یہ سب سمٹمز اگر اس میں ڈالیں, دیکھیں کہ بھئی کتنا وہ ایسولیٹ ہوا ہے اور کتنا اپنے آپ کو جو کر رہا ہے, تو پھر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض ہے. تو زیادہ تر ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, ہم ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتے, ہم جو ہے اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں. اور اسٹریس کے بھی مختلف کیٹیگریز ہوتے ہیں کہ آپ کس گریڈ میں ہوتے ہو. ایک جو ہے انیشل اسٹیج کا اسٹریس ہوتا ہے جو لازم ہوتا ہے, جو ہمیں بینگ ایک عام آدمی اور بینگ ایک ہیومن بینگ, ہمارے ساتھ ایک چلتا پھرتا انسان, ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اسٹریس لیں. اگر ہم میں اسٹریس نہیں ہو کہ اگر ہم آگے ایگزام آ رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ایگزام جو ہے 25 تاریخ کو ہے, ہم نے جو کوئی پھر بھی ہم اپنے اسی روٹین میں لگے ہوئے ہیں, پھر بھی جو ہے ہم دوستوں کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہم جو ہے کسی نہ کسی مووی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا موبائل پر جو ہے سوشل میڈیا پر سرفیسنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتا ہے کہ یہ غلط ہوتا ہے. تو اسٹریس بھی ایک ایسا سچویشن ہے کہ جو ہمیں لازمی لینا ہوتا ہے. لیکن اسٹریس کو ہم کس طرح سے دور کرتے ہیں, یہ انڈیویجولی طور پر, انفرادی طور پر ہر ایک کا اپنا جو ہے ایک انٹرنلی طور پر ایک لائف بنا ہوتا ہے. انٹرنلی طور پر اس کا جو اسٹریس کا, جو دباؤ کا, پریشانی کا مقابلہ کرنے کا طریقہ کار اس کو آتا ہے. اگر کسی کو نہیں آتا اسٹریس کا مقابلہ کرنا, اسٹریس سے کوپ اپ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو پریشانی کی وجہ سے, تو اس میں پھر یہ کہ بہت سارے چیزیں, اگر آپ ابھی سے دیکھیں کہ آپ زیادہ پریشان رہتے ہو, ابھی سے دیکھیں کہ زیادہ آپ جو ہے تجسس کا شکار ہوتے ہو, ابھی سے آپ دیکھیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ چیزوں کو اس طرح سے ڈیل نہیں کر پا رہے, تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اپنے خود کو دیکھیں. سیلف اویئرنیس کو ایک چیک ہوتی ہے ذات کی طور پر, کہ ہم رات کو, میں امید کرتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ رات میں جب سو رہے ہوتے ہیں, سوتے ہوئے پورے دن کا اپنا ایک انالیسس کرتے ہوں گے کہ آج ہم نے اپنا دن کس طرح سے ہم نے گزارا, اور ہم نے کیا کیا چیزیں صحیح کی اور کون کون سی چیزیں غلط کی. یہ سیلف اویئرنیس ہوتی ہے, اور سیلف انالیسس ہوتا ہے, اور سیلف اسٹڈی ہوتی ہے.
یہ مست ہوتا ہے کہ تاکہ جو ہمیں اپنے فیلنگز کا، ہمیں اپنے راستے کا، ہمیں اپنے ڈائریکشن کا، ہمیں اپنی چیزوں کا پتہ چلے. اس کے بعد یہ کہ ہمارا لائف سائیکل جو ہے بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم اسٹریس کا، ہم جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز کا، مسائل کا شکار ہوتے ہیں. کیونکہ جو ڈیجیٹلائز ورلڈ آیا ہے، جو ڈیجیٹل ایرا آیا ہے، میں اس کو بلیم نہیں کرتا ہوں، میں اس کا ہر وقت فیور کرتا ہوں. آپ کا جو فیس بک ہے، آپ کا ٹویٹر ہے، آپ کا لنکڈ ان ہے، آپ کا انسٹاگرام ہے، آپ کا ٹک ٹاک ہے، آپ کا پب جی ہے، جتنے بھی جو مینز آف کمیونیکیشن ہے، ورائٹی، میں سب کا فیور کرتا ہوں، سب کو جو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں. لیکن ان کو کس طرح سے ہم نے مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے. ہم اگر کہ 24/7 اگر کہ ٹک ٹاک پر لگائیں گے، 24/7 ٹویٹر پر لگائیں گے، 24/7 فیس بک پر لگائیں گے تو پرابلم ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لائف کو، اپنے ذات کو، اپنے سیلف کو کس طرح سے ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں. چیزیں کریں، کوئی آپ کو جو ہے منع نہیں کرتے. بینگ اے سائیکالوجسٹ میں کسی چیز سے آپ کو منع نہیں کروں گا. لاسٹ ٹائم پب جی جو بین ہوا تھا اور ٹک ٹاک بین ہوا تھا، ہم نے ٹویٹر پر ٹرینڈز چلائے، ہم نے ٹویٹر پر اس چیز کو کنڈیم کیا ہے کہ بھئی ان چیزوں کو بند مت کریں، اس چیزیں کھلیں. لیکن جو اس کو جو ہے آپ کو صحیح طرح سے ایکسٹریم لائن کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، لوگوں کو گائیڈ کس طرح سے کرنا ہے. آپ یوتھ ہو، آپ ینگ ہو، آپ نے جو یہ چیزیں آپ کو پابندی لگایا، ابھی ٹک ٹاک پر پابندی لگایا تھا، آپ نے جو ہے مختلف قسم کے سافٹ ویئر لگا کر، مختلف قسم کی لنکیجز لگا کر اس میں چیزیں اور کر کے آپ جو اس پر ایکسس آپ نے حاصل کیا ہے. اور اس سے جو ہے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ہزاروں ان ایتھیکل قسم کی ویب سائٹس ہیں جو بین ہے، پاکستان میں بین ہے کہ پورے ورلڈ میں، دنیا کے کونے میں بین ہے، لیکن ہم پھر بھی اس پر ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے یوتھ کو، نوجوان کو چیزوں سے روک نہیں سکتے، لیکن ہم ان کو جو گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، ہم اس کو جو بتا سکتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے پازیٹیوٹی کس طرح سے آپ نے لے کے چلنا ہے. تو یہ ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا ڈائٹ ہوتا ہے، بیلنس ڈائٹ کی جو ہم لوگ اکثر بات کر رہے تھے، وہ کیا چیز ہوتے ہے بیلنس ڈائٹ؟ یہ کھانا تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہیلدی فوڈ ہم کھا رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں کہ ہیلدی فوڈ کیا ہوتا ہے. جو آج کل کا جنک فوڈ کی جو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ برگر ہے، پیزا ہے، رول ہے، چیزیں یہ ہیلدی فوڈ ہے. تو ہم دیکھیں کہ جو ہیلدی فوڈ میں کون کون سے کرائٹیریاز آ رہے ہوتے ہیں. ہمارے جو کھانے ہیں ڈیلی روٹین میں، فوڈ میں ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالے ہوئے ہیں. اس میں آپ کا دہی اس میں موجود ہے، آپ کا دودھ اس میں موجود ہے، آپ پنیر لے رہے ہو، آپ ویجیٹیبل کتنا لے رہے ہو، آپ سیلڈز کتنا لے رہے ہو، اور آپ کے ساتھ جو ہے فروٹ میں کون کون سی چیزیں لے رہے ہو. یہ چیزیں ہمارے لائف سے آؤٹ ہے. بہت سارے فیملیز ہیں صرف وہ گوشت کی شوقین ہے، بڑے کا گوشت، چھوٹے کا گوشت، مرغی، مچھلی، یہ چیزوں کے گھر سے نہیں نکلتے. سبزی زندگی پر وہ نہیں لے رہے ہوتے. تو وہ اس طرح سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کرو گے ہمارا جو ہے مینٹلی طور پر، فزیکلی طور پر وہ اسٹرانگ رہیں گے؟ اس ایریا کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے آپ کا جو ڈیلی روٹین کا جو ہم کہتے ہیں کہ جو ایکسرسائزز ہے وہ آپ اپنی لائف میں کتنا دیتے ہو. ہم ایکسرسائز کتنا کر رہے ہوتے ہیں، یہ مست ہوتا ہے جو سائیکولوجیکل ایشوز میں ہم انکلوڈ کر رہے تھے. سیکنڈ یہ کہ جو بینگ اے مسلم، ہم فورن کنٹریز میں تو یوگا کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یوگا کرنا ہوتا ہے، میڈیٹیشن ان کی ہوتی ہے کہ مراقبہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ہم بینگ اے مسلم ہم اپنے جو ریلیجیس کی طرف کتنا جا رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کیے گئے ہیں اس کی طرف ہم لوگ کتنا جاتے ہیں. ہم اپنے ریلیجن کو اور اپنے جو اسلامک پوائنٹ آف ویو اس چیزوں کو ہم نے کتنا رکھا ہے. اگر ہم ان چیزوں پر بھی آپ کریں، اور 5 وقت کا اگر کہ جماعت اگر نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ جو ہے با وقت 5 وقت کا اگر اور کچھ نہیں کریں، 5 وقت نماز با وقت ہم اگر ادا کریں، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے پانی کا کہا گیا کہ پانی سے آپ اپنے جو وضو کرو گے اس سے بہت سارے آپ کے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، جو ایسی اسٹیپس ہیں، ایسے جو قدم ہے، اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں گے تو سائیکولوجیکل مسئلے مسائل ہمارے. سائیکولوجی ہے کیا چیز؟ سائیکولوجی آپ کی ذات کے مطابق ہے، آپ کی سوچ کے مطابق ہے. کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی ایشو ہے،
कहाँ से स्टार्ट होता है, डायरेक्ट आपके पास आपको हमला नहीं करता है, वो जो है आपके ज़हन से स्टार्ट होता है। आप रोड में जा रहे होते हो, कोई अगर कोई लड़का वहां से गुजर रहा होता है, वो चाहे जिस किस्म का हो, आपको क्या पता कि वो उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो किस फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन आप अपने ज़हन में सोच रखते हो कि ये लड़का जो है गलत लड़का है, जो है ये शायद मेरे पीछे आ रहा है, या जो है ये मुझे तंग करेगा, या मुझे टॉन्ट करेगा, या मेरा नंबर लेने के लिए मेरे पीछे आया है, या जो है मुझे कॉल करके तंग करेगा। तो ये कौन कह रहा है इन चीज़ों को? ये हमारी सोच, हमारे ज़हन चीज़ें कर रहा है। जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे ज़हन चीज़ों को अडाप्ट कर रहा होता है। अगर हम अपने इस ज़हन को, हम अपने अगर इस नफ्सियात को एक पॉजिटिव तरीके से, एक डिसिप्लिन तरीके से अगर मैनेज करें अपने लाइफ को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी साइकोलॉजिकल इशू जो है हमें सामना किया जा सकता है। मसले मसाइल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत हैं, उसमें उसके रास्ते बहुत होते हैं, वो बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें जो है आपके साथ खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट वाक़या होता है, और नो डाउट आप एक ऐसे कम्युनिटी हो, इस इंसिडेंट्स से हज़ारों इंसिडेंट्स आपके सामने आए हैं, फिर भी आप आज यहाँ पर मौजूद हो, और आप में जो एक तलब है, तो ये इस चीज़ की पावर करता है कि आप जो है फिजिकली तौर पर भी स्ट्रांग हो, साइकोलॉजिकली तौर पर भी स्ट्रांग हो, मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग हो, और आगे जाकर इन चीज़ों का मज़ीद जो है इसमें निखार और खूबसूरती इस तरह से पैदा कर सकते हो कि आप अपने आप को जो है एक टाइम मैनेजमेंट का आपने देखना होता है, आप अपने आप को डिसिप्लिन करना होता है, और उसके साथ साथ जो एक विजन आपने अपना बनाना होता है कि हमने हमारी ज़िंदगी का, जब तक आपकी ज़िंदगी की कोई मकसद नहीं हो, जब तक आपने कोई अपना ज़िंदगी का गोल नहीं बनाया हो, उस टाइम तक जो है हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बेकार होता है। हम कोशिश करें, हर एक ने अपना अपना कोई विज़न बनाना है कि छोटा विज़न, बड़ा विज़न ना हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये भी बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है कि हमने एक्सपेक्टेशंस को उस ज़ाविये तक, उस हद तक ले जाना है कि वो एक्सपेक्टेशंस तक हम लोग मीट कर सकें। हमें अपने, अक्सर ये नहीं कहा जाता है कि आपका जो लिहाफ होता है, आपका जो कंबल होता है, उसके मुताबिक आप अपने जो है पाँव फैलाना है। इस तरह से नहीं फैलाए कि अगर आपका लिहाफ छोटा है तो आपका पाँव उससे बाहर निकले। तो हमने अपने रिसोर्सेज को देखना है, हमने अपनी कैपेसिटी को देखना है, हम अपनी फैमिली को देखना है, हमने अपनी कम्युनिटी को देखना है, हमने अपने इलाके को देखना है, हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने लीगल एस्पेक्ट्स को देख कर ही अपने जो विशेज़ हैं, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस उसी मुताबिक रखेंगे तो हम किसी भी मैदान में नाकाम नहीं हो सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे डिस्कशंस हो सकती हैं, बहुत सारे बात हो सकती हैं। साइकोलॉजी एक समंदर है, एक छोटी सी जो डिस्कशन, एक छोटी सी बात से अगर हम लोग बात करें तो उसकी घंटों सेशन हो सकते हैं, लेकिन पहले मैंने आपको कहा कि 40 से 50 मिनट तक ज़्यादा हम चीज़ों को बीइंग ए ह्यूमन बीइंग नहीं ले सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा फिर आप टाइम दोगे, जितना भी बात करोगे तो वो समझो कहीं और चला जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।